बेचूं की और हमारे असातिज़ा की पूरे इदारे की हौसला अफजाई हो जाए। तो मैं चेयरमैन सर का और मैडम का और जो हमारे मेहमान हैं और हमारे मेहमान खुसूसी जनाब इंजीनियर खुर्शीद साहब जो सिटिंग एमएलए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ इस छोटे से प्रोग्राम में, छोटे से इदारे में। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं अगर शामिल हाल रहें तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये छोटा सा इदारा जो है ये इंशाअल्लाह कल को बहुत बड़ा इदारा बन जाएगा। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, जिशरर सितारा जोयम जिसितारा आफ्ताबे सिरे मंजिले नदारम कि बिमीरम अज़करारे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे जनाब मोहम्मद यूसुफ मशहूर साहब जो आपके सामने आते हुए इंग्लिश स्पीच के लिए दावत देते हैं। आमिर शाह क्लास 8 फ्रॉम रामबन। Parents and all my dear brothers and sisters. Respected chief guests, teachers, parents and all my dear brothers and sisters. As you know all myself, I am Amir Farooq from class 8. Today, I want to talk about something that has become an inseparable part of our lives, social media. While it promises to connect us, to inform us and offer us endless opportunities, it is also quietly harming our children in ways we cannot ignore. The effects of social media can be devastating on children, and it is our responsibility to address this growing problem. Social media is designed to grab attention and keep users hooked. For children, this often leads to addiction. Hours are spent scrolling through endless feeds, liking pictures and watching videos. The time that could be spent by studying, playing outdoors or bonding with families is consumed by screens. These addictions affect their focus, their mental health, their ability to concentrate and even their creativity. More alarming is how social media impacts the mental health of the children. Everywhere they look, there are perfectly careful images of perfect lives, perfect bodies and perfect achievements. Children compare themselves to these unrealistic standards and feel inadequate. They start believing that they are not good enough, not beautiful enough or not successful enough. This constant comparison chips away at their self-esteem, leads to anxiety, depression and even thoughts of self-harm. One of the most concerning aspects of social media is cyberbullying. Unlike traditional bullying, which may end when the school is over, cyberbullying does not end when the school is over. It follows them home and everywhere. Hurtful comments, messages, threats, and public shaming on social media create a hostile environment that they cannot escape. The psychological damage from this can last a lifetime. Social media also exposes children to harmful and inappropriate content. Violence, explicit material and dangerous trends find their ways into their feeds. Children are curious and impressionable. They often imitate what they see without. Another issue is privacy. Children online without real hackers and scammers exploit their innocence, keeping their safety at serious risk. The very platforms designed to connect them can sometimes expose them to the worst of humanity. Let us not forget the misinformation and fake news that flood the social media. Children are too young to distinguish between what is true and what is false. They are often misled by exaggerated or completely false information, which shape their understanding of the world in dangerous ways. Social media also creates a danger dependency on validation. Children learn to measure their worth through likes, comments and followers. Their self-esteem becomes tied to approval.
of strangers, making them vulnerable to rejection and criticism. The truth is, social media has taken every aspect of child's life. It impacts their education, their values, and even their dreams. Children are drawn into a materialistic world where influencers and advertisements constantly tell them what they need to buy to fit in. They forget the importance of hard work, contentment, and real life achievements. So what we can do? This is not a fight we can win alone. Parents, teachers, and society must come together. We need to limit screen time, encourage outdoor activities, and create spaces for children to connect to the real world. We must teach them the dangers of social media and how to use it wisely. And most importantly, we must lead by example. In conclusion, social media is not the enemy, but is a powerful tool that must be used responsibly. If we fail to guide our children, the cost will be their mental health, their safety, and even their future. Let us act now to protect them from the hidden dangers of this digital world. So I conclude my this speech with a poetry. अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलान है तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना. थैंक यू. अपने मन में डूब कर पाजा सुरा के जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन. इसके बाद में अरबिक स्पीच के लिए अवैस मुश्ताक क्लास 8th फ्रॉम सुनवा जम्मू वो आए और अपनी स्पीच पेश करें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. आज का मेरा मौजू अरबिक में तकरीर है. هذه مدرسة هي قريب من المسجد اسمها الهلال انترناشونال سكول جمو. هي كثيرة جميلة جد لها 3-4 أبواب، أبوابها مفتوحة في الأوقات الدرس. في المدرسة رسول كثير طلاب والأساتذة كثير. كل أساتذتنا مشرعون ومجتهدون، وكل الطلاب لأساتذتهم ووالدهم. هذا فصلنا وهو واسع فيه نافذتان كبيرتان ومكاتب وغرافي وسبورة. في فصلنا 40 طلاب وكل من ولاية مختلفة، ولكن دين واحد ورب واحد وقبلة واحد. كلنا نحب مدرستنا وأساتذتنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. इसके बाद में ड्रामा क्लास 6 को दावत देता हूँ और अपना ड्रामा पेश करें. माँ बाप की शान, अफीफा एंड ग्रुप. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग देखने लगे. ये ना ये चीज़ ये हम हैं. एक भी नहीं भी देखना. इतनी सारी पब्लिक है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हर कोई देख रहा है. मुझे
मुझे सेटअप करना है। चार्जर है नहीं सर का, उसके लिए सीधा चाहिए केबल। नहीं नहीं कवर नहीं आना। आज हम आपके सामने एक ड्रामा पेश करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे आजकल के ज़माने में बच्चे माँ बाप के साथ कैसे सलूक करते हैं। सर यार सर ये लीजिए आपका अखबार आ गया। जी लाती हूँ। बेटा तुम्हें कितने क्वेश्चन आंसर्स याद हुए? जल्दी से याद करो, मैं कल तुमसे सुनूंगी। अभी तुमसे सुनूंगी, कल तुम्हारा एग्जाम है। ओहो, यहाँ कितनी सारी गंद है। मुझे भी झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, बर्तन भी धोने और अम्मी का बिस्तर भी। खुद से कोई काम ही नहीं करती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। बहू, ओहो क्या हुआ मम्मी जी, क्यों पूरा घर सिर पे उठा के रखा है? बहू मेरे सर में दर्द हो रहा है, कब चाय लाना? अभी ला। ओहो, इस बुढ़िया ने तो परेशान करके रखा है, सिर्फ ऑर्डर देती है, कोई काम नहीं करने देती मुझे। ये लीजिए अम्मी, ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ, तुम्हें इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपको पसंद आए तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताओ क्या बात है? अम्मी जी को ओल्ड एज होम भेज देते हैं, वो दुआ को पढ़ने नहीं देती, मुझे काम नहीं करती और हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा कराती है दवाइयों के पीछे। हमारा तो घर का राशन भी पूरा नहीं हो पाता। तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में सोचता हूँ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ईशान भाई। आप इतने परेशान और इतने कमजोर क्यों हो गए? अरे क्या बताओ असलम भाई, माँ और बेगम ने तंग लाया है। माँ की सुनूं कि बेगम की सुनूं? मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आप अपनी माँ जी को ओल्ड एज होम छोड़ दीजिए। चलो ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। चलो बेटा सुनाओ मुझे। अरे कितना सोना सोना सा लग रहा है, मेरे पास कोई बैठा भी नहीं है। बहू, मम्मा दादी के शोर की वजह से मुझे याद भी नहीं आता, बोलने भी नहीं हो रहा है। रुको मैं उनका इलाज कराती हूँ। क्या मम्मी जी क्यों पूरा घर सिर पे उठा के रखा है आपने? 2 साल के बच्चों की तरह चिल्लाती रहती है। आप इतनी बुजुर्ग हो गई है तब भी आप रास नहीं आती हैं। रुको आपका इलाज करके आती हूँ। सुनो, आपको कितनी दफा बोला है कि अम्मी जी को ओल्ड एज होम भेज दीजिए, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है? अरे मेरा दोस्त आया था, उसने भी मुझे ये मशवरा दिया कि अपनी वालिदा को ओल्ड एज होम छोड़ दो। तो देर किस बात की है, चलो मम्मी जी से बात करते हैं। मम्मी जी हमने आपका बैग पैक कर लिया, आप बस जाने की तैयारी करें। अरे बेटा कहाँ? ओल्ड एज होम। बेटा ये बहू क्या बोल रही है? अरे माँ सही बोल रही है, मैं आपकी सुनूं कि इसकी सुनूं? इससे अच्छा है कि आप ओल्ड एज होम चले जाओ। मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, अब तुम बोल रहे हो मैं तुम्हें ओल्ड एज होम छोड़ दूंगा? मैंने रात पर अपनी नींदें कुर्बान की, अब तुम्हें सुलाया है, तो अब बीवी के गुलाम बन गए हो। उफ अम्मा, मुझे खलासी दे दीजिए, आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आप मुझसे इतना ज्यादा काम कराती हैं, मैं अपना काम करूँ कि आपके ऑर्डर पूरे करूँ? आपको चलना पड़ेगा, बस आपका बहुत हो गया है। बेटा मुझे नहीं जाना है, बेटा मुझे नहीं जाना है। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? हम दादी को उनके नए घर छोड़ने जा रहे हैं। मम्मा दादी वहाँ खुश नहीं रहेंगी। वो वहाँ बहुत खुश रहेंगे, उनकी उम्र के बहुत सारे लोग वहाँ पे। दादी मेरे को याद। उफ बस करो ये मिलना, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ की मैनेजर हैं? जी मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हम अपनी वालिदा को यहाँ छोड़ने आए हैं। आप अपनी वालिदा को ओल्ड एज होम क्यों छोड़ना चाहते हैं? वो फर्स्ट्रेट हो
वो फ्रस्ट्रेट हो गई है, पागलों जैसी बातें करती है और दिन भर बड़बड़ाती रहती है। हमें भी काम नहीं करने देती है और दुआ को भी पढ़ने नहीं देती है। ठीक है, नाम बताइए इनका। रुखसाना बेगम। और नंबर भी दे दीजिए अपना। 91567855। कभी इमरजेंसी होगी तो हम आपको कॉल जरूर करेंगे और अभी रिसीव करना। चलो ठीक है। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और नमाजें पढ़ा करना और टाइम से खाना खाया करना और सुख शांति से रहना। अब आप नहीं है ना तो हम सुख और शांति के साथ रहेंगे। जब आप हमारे साथ थी तो हम सुख और शांति के साथ रह नहीं पाते थे। सना, मुझे ऑफिस जाना है, फाइल आना है। ये लीजिए आपकी फाइल। चलो मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। अरे मुझे ओल्ड एज होम से कॉल क्यों आ रही है? मैं क्या करूँ इनका? सना, मैं आ गया, चाय लाना एक कप। जी लाती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय, फिर तुम्हारा मिल्कशेक। अरे आज मैं ऑफिस में बहुत तंग आया। क्यों? ओल्ड एज होम से ये जरूर मम्मी जी फोन कर रही होंगी, अपनी नई ऑर्डर पूरे करने के लिए कर रही होंगी। मैं इस नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ। मगर तुम भी इतने अच्छे नहीं हो। अगर तुम्हारी माँ ने जरा सा तुम्हें प्यार कर दिया ना, तुम उनके पैर पकड़ने चले जाओगे। अरे चुप हो जाओ, ऑफिस का इतना टेंशन होता है, घर आके भी तुम टेंशन देती रहती हो। अरे मैं आपको टेंशन देती हूँ? आप ही ने तो मेरा बीपी हाई किया है। पहले आपकी माँ की वजह से मेरा बीपी इतना हाई हो गया था, अब आप भी मेरा सिर दर्द करा रहे। ओल्ड एज होम छोड़ दिया है। उफ, मैंने कहा था तुम्हारी माँ को छोड़ने के लिए। मम्मी पापा आप लड़ाई मत करो, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है। माफ करना बेटा। बेटा देखो, अब दादी भी नहीं है इस घर में, सुख और शांति है और दादी की किटपिट भी नहीं है। अब तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सकती हो और अच्छे से सुकून के साथ पढ़ सकती हो। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है बड़े होकर? मम्मा मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहती हूँ। कैसे? जैसे आप दादी के बाल पकड़ के घर का सारा काम कराती थी, वैसे ही मैं आपके बाल पकड़ के घर का सारा काम कराऊंगी। फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको ओल्ड एज होम छोड़ दूंगी। कोई लड़की और इसकी बातें, ये तो वही बातें दोहरा रही है जो करेगी। तो हम क्या करेंगे? ये सही कह रही है, जो हम इसको सिखा ना पाए वो ये हमें सिखाइए। हमें जल्दी से जाना चाहिए मम्मी जी के पास, इससे पहले देर ना हो जाए। जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। हम अपनी वालिदा को लाने आए तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अरे आप अफसाना बेगम की बात करें? जी हाँ। अरे आपको मैंने कितनी कॉल की, आपने एक कॉल भी रिसीव नहीं किया। आपको अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है क्या? नहीं था क्या? नहीं था क्या? क्या था? आपकी माँ का 2 दिन पहले इंतकाल हो गया है। क्या? मम्मी पापा मैंने आपको बोला था दादी माँ कुछ नहीं रहेगी, अब रोने से क्या फायदा? बेटा ये सब हमारी गलती है। हमने माँ की खुशियों को दफन करके खुद की खुशियों की तलाश में निकल गए। हम उनको समझ नहीं पाए। इधर से। अरे इसके बाद मैं उर्दू स्पीच के लिए दावत देता हूँ राबिया बानो फ्राम चुनैनी इस शेर के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग वो कलम तेरे हैं। फोकस करो, जल्दी वहाँ से हटो। सदर मोहतरमा प्रिंसिपल मैम, मेहमान हजरात और मेरे भाई और बहन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है इंसान। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह खुद करता है और लानत देता है शैतान।
एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू की बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स था। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो गुमा था। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था खुदा था। वो मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दिया। वो जुबान जिसे न चला सके, वही जान जिसे न लगा सके, वही दिल जिसे न मिला सके। ए इंसान गौर कर, कभी मिल भी तू, तुझे बताए हम, तुझे इस तरह सताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे महफिलों में बुलाया। तुझे दर्द दूं तू न कह सके, न दर्द तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं जुबान तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। तुझे मैं मुश्किलों में गैर कर कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तुझे मुश्किलों में गैर कर कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं। तेरी दर्द की मैं दुआ करूं, किसी गर्ज की मैं सेवा करूं, तुझे हर नजर से गुफूर दूं, तुझे जिंदगी का शूर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नियतों को तू साफ कर। तेरी शान में कोई कमी नहीं, मेरी इसी कलाम को तू माफ कर। लोग अपनी जुबानों से लोगों को सवार कर रहे हैं आजकल, ऐसे गंदे जुमले बोलते कि इज्जतें तार तार, दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सीने तंग हो जाते हैं। लफ्जों की मार तो बंदूक की मार से ज्यादा शरीफ होती है। बंदूक का मारा तो मर गया, लेकिन लफ्जों का मारा सारी जिंदगी तरफता रहता है और इसको सुकून नहीं आता। ऐ इंसान, किसी को तू इतना दुख ना दे, वो तेरे सामने चुप रहे और अल्लाह के सामने। ये दिल गमगीन है या रब करारे दिल अता कर दे, ये दिल गमगीन है या रब करारे दिल अता कर दे। इलाही तुझको पाए जो मुझे वो रंग अता कर दे। गमों से फट चुका है ये दिल और ये रूह भी जख्मी है, गमों से फट चुका है ये दिल और ये रूह भी जख्मी है। न अपना न पराया कोई अब सबसे है दूरी, बच जाए जख्म जिससे मुझे वो मरहम अता कर दे। इलाही तुझको पाए जो मुझे वो रंग अता कर दे। पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया ते नाम रख लिया काजी, पढ़ पढ़ किताबा इल्म दिया ते नाम रख लिया काजी। हाथ विच फड़ के तलवार ते नाम रख लिया काजी। मक्का मदीना घूम आया ते नाम रख लिया हाजी। ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। आज हमारा ईमान पता नहीं, हमारा ईमान तो ऐसा है, साइंस पढ़े तो साइंस वाले बन जाते हैं, हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री वाले बन जाते हैं, दुनिया पढ़े तो दुनिया वाले बन जाते हैं। और एक तरफ पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक कह लेते हैं देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और दूसरी वाला में सुनिया अपना आइटल सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो। एक बात तो कर लेते हैं और कह लेते हैं अल्लाह से अल्लाह मुझे माफ कर, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और दूसरी नमाज में हम अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। ये सांसें, इनसे कभी सवाल करना कब तक हूँ मैं तेरे साथ, कहेंगे सारी उम्र हूँ मैं तेरे साथ। और जब मौत आती है सबसे पहले यही सांसें छोड़ के चले जाती है। ए इंसान याद कर वो अपने बचपन का जमाना जब तू स्कूल जाता था और क्लास में एक बच्चे को मार पड़ती थी तो दूसरा बच्चा सोचता था मेरी भी बारी आएगी, अब मेरी भी बारी आएगी। आज हम किसी के जनाजे पर जाते हैं तो इंसान क्यों नहीं सोचता मेरी भी बारी आएगी, अब मेरी भी। न हमदम ओ न अपने बेगाने साथ जाएंगे, न हमदम ओ न अपने बेगाने साथ जाएंगे, न दुनिया ओ न दुनिया के खजाने साथ जाएंगे। मनो मिट्टी के नीचे कब्र में तू सो। किसी के पास पैसा है तो अमीर, किसी के पास पैसा नहीं है तो गरीब कहलाया जाता है। इस पैसे के पीछे इतना भागे जितना इस पैसे के पीछे भागते उतना ही हमसे दूर चले गए। अब पता नहीं चल रही दुनिया हमसे खेल रही है, हम ही दुनिया से खेल रहे हैं। बस यही तक है दौलतें, शोहरतें, नफरतें और मोहब्बतें, बस
लोग क्या कहेंगे आखिर में। सारी जिंदगी इसी फिक्र में गुजर गई कि लोग क्या कहेंगे आखिर में। लोग तो सिर्फ इतना कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह उस शख्स को सुकून दे जो अपने हालात के राज किसी को कह नहीं सकता। मेरे अल्लाह तो हर वक्त या मेरे अल्लाह तो उस इंसान के रूह के अंदर की हालात को जानता है। मेरे अल्लाह हर बेसुकून दिल को तो सुकून अता कर दे। बड़ी बड़ी महफिलों में कदर हो रही है इंसान की। बड़ी महफिलों में कदर हो रही इंसान की। न नमाज का पता न ईमान का पता, तेरा तो तब इन्हें पता चलेगा जब इंतजाम कबर होगा इंसान का। इसके बाद में गोजरी बैत के लिए दावत देता हूँ। शहबाज को आए और अपनी गोजरी की पेश करें। नजाकत सर, नजाकत सर, नजाकत सर। शहबाज की क्लास कहाँ से आती है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप सबके सामने गोजरी बैत पेश करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब गौर से सुनें। इसके बाद में जाबरान कोहली को दावत देता हूँ। सलाम की अहमियत क्लास 6 प्रांत छात्र किश्तवाड़। हमें नहीं पता था। क्लास 4। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सलाम की अहमियत और आदाब। इस्लाम की तालीम में सलाम की काफ़ी अहमियत है। जब मुसलमान आपस में मुलाकात करता है तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और सामने वाला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को फैलाओ। सलाम एक हाथ है जो हिफाजत के लिए दी जाती है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे बड़े को सलाम, सवार पैदल और कम तादाद और ज्यादा तादाद वालों को सलाम करे।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सलाम कर बच्चों को सलाम करते थे। शुक्रिया। इसके बाद में नात के लिए दावत देता हूँ। महलका हिलाल को आए और नात पाक पेश करें। क्लास 6। साइड रख। ये तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखने को मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं। एक से एक बढ़ के हसीन देखे मगर या मुस्तफा, एक से एक बढ़ के हसीन देखे मगर या मुस्तफा, से बढ़कर स्लो कनेक्शन शिट। से बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं। मीम का पर्दा हटा के वो निगाह शौक से, मीम का पर्दा हटा के वो निगाह शौक से, मुस्तफा को देख ले जिसने खुदा